قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملک بھر کے تعلیمی ادارے 5 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ تمام سرکاری اور نجی ادارے اور مدارس میں شامل 23 مارچ کو ہونے والی مسلح افواج کی پریڈ منسوخ وزارت صحت کی ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کی سفارش وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف ایئر چیف نیول چیف کی شرکت وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر دفاع اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے ظفر مرزا کی کورونا کی صورتحال پر بریفنگ پاکستان نے بارڈرز پر آمد و رفت 2 ہفتے کے لیے بند کر دی۔ وزارت داخلہ نے ایران اور افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے تحت عوامی اجتماعات پر بھی 15 روز کے لیے پابندی۔ پی ایس ایل کے باقی تمام میچ تماشائیوں کے بغیر ہوں گے۔ شاہ محمود کہتے ہیں بین الاقوامی پروازیں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے اڑیں گی۔ عوامی مقامات پر احتیاط کرنا ہوگی۔ ورلڈ کانگریس اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانی ہائی کمیشن کے اشتراک سے لندن میں تقریب پولیو کے خاتمے کے لیے متحرک روٹری انٹرنیشنل کے صدر مارک مالونی کی خصوصی شرکت۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت اور پاک فوج کی کوششیں قابل تحسین ہیں، مقررین کا خطاب۔ شوکت خانم میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کے 25 سال مکمل ہونے پر لندن میں 2 روزہ گالا ڈنر۔ شوکت خانم اسپتال کے برانڈ ایمبیسڈر اداکار جاوید شیخ اور ثنا فاخر کی خصوصی شرکت۔ اسپتال کو چندہ دینے والے مخیر حضرات بھی موجود۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسپتال کے فلاحی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ برمنگھم کے ساؤتھ اینڈ سٹی کالج ویمن کیمپس کے زیر اہتمام ویمن ڈے کی مناسبت سے تقریب۔ معاشرے کی تشکیل اور ملکی معیشت کے استحکام میں خواتین کے کردار کا اعتراف۔ معلوماتی اسٹالز پر خواتین کا تانتا بندہ رہا۔ نہ تو آثار ہے ساحل کے، نہ کشتی مضبوط، اور آنے کو طوفان ہے بڑی مشکل ہے۔ ایسٹ لندن میں معروف عالم دین حافظ محمد اسماعیل کی کتاب سورہ یاسین کے فضائل کی تقریب رونمائی۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ مقامی شعراء نے کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ بری کے مقامی ہال میں پوٹوہاری شعروں کی محفل نے رنگ جما دیا۔ خطہ پوٹوہار اور کشمیر سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ حاضرین محفل عارفانہ کلام پر جھومتے رہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اسکاٹش حکومت کے اقدامات۔ 500 افراد کے اجتماع پر پابندی۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو مسجد کے بجائے گھر میں نماز ادا کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر جانے والے سعودی آن لائن سسٹم کے ذریعے اپنی چھٹیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے ہدایات جاری کر دیں۔ نوٹنگھم میں آل یو کے یورپ والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ یورپ بھر سے 8 ٹیمیں شریک۔ کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ فاتح ٹیم کو کیش انعام کے ساتھ ٹرافی سے نوازا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 92 نیوز کے پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صفدر علی اور میں ہوں رافع اعوان۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے بڑے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 5 اپریل تک بند رکھے جائیں گے۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ بھی منسوخ کر دی گئی۔ پاک افغان اور پاک ایران بارڈر 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے ایک بار پھر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اہم اقدامات کی منظوری دے دی ہے۔ آج ہونے والا یہ اجلاس ہر حوالے سے
इंतहाई अहम है। किसी भी वबा से निमटने के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी, एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान शरीक हुए। DGISI ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और दीगर सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। इजलास के फैसलों की तफसीलात का वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्विटर पर ऐलान किया। इस इंतहाई अहम पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राना तारिक, कोयटा से ब्यूरो चीफ खलील अहमद, लाहौर से डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां शाहिद नदीम और कराची से हमारे नुमाइंदा वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से आगाज करते हैं। राना तारिक, फैसलों की तफसीलात से आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि एक बार फिर हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा किया गया है। जी बिल्कुल, कौमी सलामती का ये जो अहम इजलास है, ये किसी भी वबा से निमटने के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार ये इजलास बुलाया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारत की, जिसमें तीनों मसल्ह अफवाज के सरबराहान, इसके अलावा वज़राए आला जो हैं वो भी शरीक हुए। इजलास में मावन खुसूसी वज़ीर आज़म सेहत के हवाले से जो है उन्होंने ज़फ़र मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म को हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से सिफारिश की। इसके अलावा 5 बड़े फ़ैसले जो हैं वो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए और उनको फौरी तौर पर उनका नफाज किया जाएगा। पहला जो फैसला किया गया है, बॉर्डर की बंदिश, तालीमी इदारों की बंदिश, उसके अलावा इज्तिमाआत पर पाबंदी जो है, और इसके अलावा PSL के मैचेस जो हैं वो क्राउड के अलावा जो हैं वो दिखाए जाएंगे टेलीविज़न स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारे जो हैं, इसमें दीनी मदारस भी शामिल हैं, वो 5 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। और योम पाकिस्तान के हवाले से जो तकरीब होनी थी, परेड होनी थी 23 मार्च को, उसको भी मनसूख करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा PSL के तमाम क्रिकेट मैचेस जो हैं जो कराची और लाहौर में होने थे, उनको क्राउड के बगैर जो है पाकिस्तानी कि जितने भी अपना स्पोर्ट्स चैनल हैं उन पर दिखाया जाएगा। इज्तिमाआत नहीं होंगे, आवाम नहीं जा सकेगी उन मैचेस को देखने के लिए। इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी का बॉर्डर्स पर आमद रफ्त रोकने का फैसला किया है। तमाम बॉर्डर जो हैं, जो चाहे वो अफगानिस्तान का है या ईरान का है, उनको बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा अवामी इज्तिमाआत पर 15 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान राना तारिक आप हमारे साथ ही हैं और इस्लामाबाद की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे वकास बाकर का। वकास, बताइएगा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह दुनिया भर में कोरोना वायरस के खौफ और परेशानी की सूरत हाल है, इसी तरह से आलमी इदारा सेहत के ऐलान के बाद सिंध हुकूमत ने भी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वबाई अमराज के एक्ट का अमली तौर पर निफाज कर दिया गया है। सिंध में इस वक्त जो वबाई अमराज का एक्ट है, उसके मुताबिक सूबे भर में किसी भी अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी और डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। दीगर कवानीन जो कि मुख्तलिफ इस मामले पर हैं, उनको मुअत्तल करके सिंध वबाई अमराज एक्ट का अमली तौर पर निफाज कर दिया गया है। तमाम तर सरकारी जो इख्तियारात हैं, किसी भी शहर जिले में अवामी तकरीब हो, समाजी तकरीब हो या कोई सियासी इज्तिमा हो, उस पर पाबंदी आयद की गई है और डिप्टी कमिश्नर को ये बाइख्तियार किया गया है कि वो वबाई अमराज एक्ट के निफाज के तहत तमाम तर इकदाम करेंगे। इस मुरव्वजा एक्ट के तहत कोई भी शख्स जो कि वबाई मर्ज से मुतासरा हो या मुतासर हो सकता हो, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, उसकी टेस्ट और स्क्रीनिंग से इनकार नहीं कर सकेगा। साथ साथ सिंध हुकूमत ने जो दीगर तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला कल ही कर लिया था। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भी किया गया था। वकास बाकिर हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है कोयटा से ब्यूरो चीफ खलील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। खलील अहमद, कोरोना वायरस से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की तैयारियां कैसी हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से काफ़ी हसास साबित हुई है और जब 20 फरवरी को ईरान में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के केसेस सामने आए तो उसके फ़ौरन बाद 22 तारीख को तफ्तान में क्वारंटाइन हाउस कायम कर दिया गया, वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा तमाम महकमों की जो है मुलाजमीन को वहाँ भेज दिया गया और वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद वहाँ पे लोगों को रखा गया। इसके अलावा कोयटा में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, क्वारंटाइन हाउस
ہاؤس بنائے گئے اور آج تقریباً 2000 کے قریب جو ہے زائرین وہ اب کوئٹہ صرف چند منٹ پہلے کوئٹہ پہنچے اور جہاں سے ان کو آبائی علاقوں کو روانہ کیا جائے گا. اس میں 800 کے قریب جو ہیں وہ پنجاب کے زائرین ہیں, اس کے علاوہ سندھ کے 300 ہیں, خیبر پختونخوا کے 46 ہیں اور گلگت بلتستان کے 350 کے قریب زائرین ہیں جنہیں 15 دن سے زائد کوارنٹائن ہاؤس تفتان میں رکھا گیا. ان کے ٹیسٹ کیے گئے, اسکریننگ کی گئی اور اس کے بعد یہاں کوئٹہ بھیجا گیا اور یہاں سے آپ ان کو کھانا کھلانے کے بعد ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیا جائے گا. تو بلوچستان حکومت ہر روز وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس ہو رہے ہیں جس میں اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کٹس کا مسئلہ ہے جو کہ بلوچستان حکومت کے پاس بہت کم ہو گئی ہیں اور وفاق سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ جو کٹس بہت کم ہے. خلیل احمد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی بیورو چیف میاں شاہد ندیم نے. میاں شاہد صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پنجاب میں ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ اسپتالوں کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ پنجاب نے حکومت نے جو ہے اس حوالے سے کافی قابل ستائش جو ہے وہ کام پہلے سے ہی شروع کر رکھے تھے اور انہوں نے ایئرپورٹس پر جو ہے وہ اسکریننگ کا نظام بھی جو ہے متعارف کرایا تھا کہ بیرون ملک سے جو لوگ آ رہے تھے وہ لوگ جو ہے ان کی اسکریننگ کی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ بھی بنائے جا رہے ہیں اور لاہور اور پنجاب میں اتنے زیادہ کیسز تو سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر کر لیے گئے ہیں. لاہور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مایوس ضرور ہیں کہ جو پی ایس ایل کے میچز لاہور میں اب ہونے ہیں سیمی فائنل اور فائنل, اس میں تماشائی نہیں جا سکیں گے, لیکن حفاظتی اقدامات کے لیے پنجاب حکومت نے یہ سفارش کی تھی پی سی بی سے, جسے پی سی بی نے مان لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کے لیے بھی والدین بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان کا کیا کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر مراد راز کا دوپہر میں بھی ایک ٹویٹ آیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے متعلق کافی پریشان ہیں. تو میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے, ہنگامی طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی سے وقاص باقر اپڈیٹ کر رہے تھے, اسلام آباد سے رانا طارق, جبکہ کوئٹہ سے خلیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. اور بلیٹن میں یہاں شامل ہے ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. اسکاٹش حکومت نے بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں. حکومت نے 500 لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے. 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو مسجد کے بجائے گھر میں نماز ادا کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. تفصیلات خالد پرویز کی اس رپورٹ میں. اسکاٹش حکومت نے بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانا شروع کر دیے. حکومت نے 500 لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے اور ساتھ ہی 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو مسجد کے بجائے گھر میں ہی نماز ادا کرنے کی ہدایات جاری کر دیں. ڈرینفر ملین کی رکن اسکاٹش پارلیمنٹ اور سوشل منسٹر شیرلی آن نے ڈرینفر ملین مسجد کا دورہ کیا. نمازیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس مشکل وقت میں اسکاٹش گورنمنٹ مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہے. So it's lovely to be here at Dunfermline Central Mosque and particularly to reassure the Muslim community in Dunfermline and in wider Fife about what's happening with coronavirus. There's good information coming from the government. Please follow that information, follow that advice. Please look after yourself, your neighbours, members of your community, those who perhaps might not have access easily to food if they have to self-isolate. So please look at what you can do to protect yourself, protect your family and protect each other. There's no reason for mosques to close, but please listen to advice. This may change over the time about wider gatherings, but please be reassured that the community is being looked after by the government and we're ensuring that we're doing everything we can to protect people in Scotland. اس موقع پر چیئرمین ڈرینفر ملین اسلامک سینٹر اعجاز احمد نے کہا مسجد میں باقاعدگی سے جمعہ کی جماعت ہوگی. یہ کرونا وائرس COVID-19 جو اس وقت پوری دنیا میں وبا کی طرح پھیل چکا ہے, ہمیں اس کے بچاؤ کے لیے میک شور اگر کسی بھائی کو بھی سمٹم ہو کولڈ کی, فلو کی یا ٹیمپریچر ہو تو انہیں فوری طور پہ اپنی جی بی سے رابطہ کرنا چاہیے اور باقی لوگوں سے ملنا جلنا اسے آئسولیٹ کر لینا چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کیونکہ یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور لہٰذا ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنی کمیونٹی کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور سب کی حفاظت کرے, آمین. ہم نے دیکھا کہ جن ممالک میں یا جن علاقوں میں اس وائرس کے حوالے سے جو ابھی ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے,
احتیاطی تدابیر نہیں کی گئیں تو وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کی حکومتوں کو کافی نقصان اٹھانا پہنچا اور بہت سی جانیں ضائع بھی ہوئیں. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ ہم سے جو بھی احتیاطی تدابیر کرائے گی ہم اس پر عمل کریں گے. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو بھی اسکاٹش گورنمنٹ آپ احباب کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہے آپ اس پر عمل کریں تاکہ آپ خود بھی حفاظت سے رہ سکیں اور اپنے ساتھ رہنے والے دوست احباب کو بھی حفاظت کے ساتھ رہ سکیں. جزاک اللہ. We'd like to just advise the community in Dunfermline that although the coronavirus is obviously infectious, there is some rules that we should follow. We do recommend that people over 60 should maybe pray at home and not attend the mosque. آخر میں شیرلی آن نے مسلم کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر حکومت کا ساتھ دیں. خالد پرویز 92 نیوز اسکاٹ لینڈ. کورونا وائرس کے حوالے سے لوکل ایم پی شیرلی کریان مسجد میں آئی. انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ کرونا کے حوالے سے جو مسائل یو کے میں آ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی پریشان والی کی ضرورت نہیں ہے اور مسجد کھلی رہے گی. 500 سے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے یقین دوایا کسی قسم کا مسئلہ ہو تو جو اسکاٹش گورنمنٹ ہے وہ ہم کی ہیلپ کرے گی. خالد پریز 92 نیوز ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ. دنیا بھر سے پولیو کے خاتمے کے لیے متحرک روٹری انٹرنیشنل کے صدر مارک مالونی کے اعزاز میں ورلڈ کانگریس اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانی ہائی کمیشن کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اور وہیں پر مارک مالونی نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. مزید جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ورلڈ کانگریس اوورسیز پاکستانی کی جانب سے پاکستان ہائی کمیشن میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. منعقدہ تقریب میں روٹری انٹرنیشنل کی پولیو کے خاتمے کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر ڈبلیو کوپ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد پاکستان کی حکومت کے تعاون کا شکریہ ادا کرنا ہے. مارک ملونی سمیت دیگر روٹری انٹرنیشنل ممبران نے کہا کہ وہ پاکستانی حکومت اور پاک فوج کے شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے پولیو خاتمے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی کامیابی حاصل ہوگی. تقریب میں جوید خان سی ای او برناڈوس، جونیس ڈیمنٹ روٹری انٹرنیشنل، محمد ایوب ڈپٹی ہائی کمشنر، جمال عالم ڈیفینس اینڈ نیول ایڈوائزر، سوسان ایلڈن، ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز طارق سلمان سینئر فیلو، بلومزبری پاکستان سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے اختتام پر ہائی کمشنر محمد نفیس ذکریہ کی جانب سے صدر روٹری انٹرنیشنل اور ان کی اہلیہ کو تحائف بھی پیش کیے گئے. غلام حسین وان 92 نیوز یو کے. شوکت خانم میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام کے 25 سال مکمل ہونے پر برطانوی پاکستانی ڈونرز کے اعزاز میں 2 روزہ گالا ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں شوکت خانم کے برانڈ ایمبیسڈر اداکار جاوید شیخ اور ثنا فاخر نے خصوصی شرکت کی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ. لندن کے مقامی ہوٹل میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام کو 25 سال مکمل ہونے پر برطانوی پاکستانی مخیر حضرات کو مدعو کیا گیا اور ان کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی گئی کہ وہ ماضی کی طرح شوکت خانم ہاسپٹل کے ذریعے کینسر کے مریضوں کی خدمت کر کے ملک و قوم کا دنیا بھر میں نام روشن کرتے رہیں گے. تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کرنے والے پاکستانی معروف اداکار جوید شیخ اور ثنا فاخر نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل مفت فراہم کر رہا ہے. خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ بڑا پاک صاف اور بڑا اپنے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. ایک بندے نے 25 سال پہلے ایک ڈریم دیکھا کہ یار ایک ہاسپٹل بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا. میں فلائٹ لے رہی تھی. مائی مدر ٹولڈ می کہ مجھے لگتا ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور تم جاؤ گی وہاں پر ایسا نہ ہو کوئی سچویشن ہو جائے اور اسٹک ہو جائے. میں نے کہا امی کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے اور آپ کے اور ایک ہی لیے نہیں ہے. جب سب کے ساتھ ہوتا ہے جو وہاں پر ہمیں ایک چیز کا اسٹرانگلی بلیو کرنا ہے ایز اے مسلم دیٹس جو دن جانا ہے وہ جانا ہے. تو اور جس کاز کے لیے مجھے بلایا گیا تھا آئی کی ناٹ سے نو
इस मौके पर शौकत खानम के CEO डॉक्टर फैसल सुल्तान और बरतानिया में अदारे के बानी ऑर्गेनाइजर ताहिर नवाज ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हॉस्पिटल के काम और खिदमात से आगाह किया। कारकर्दगी जी लगातार वैसे ही चल रही है जैसे थी, उसमें इजाफा है, उसके नंबर्स में इजाफा है, उसकी क्वालिटी में इजाफा है। पिछले इन 1-2 सालों में जॉइंट कमीशन की सर्टिफिकेशन हुई है जिसका मैंने आपको जिक्र किया, पहले लाहौर की 2018 में, फिर पेशावर की 2019 में। और लगातार हमारी तरफ से यही कोशिश है कि जो क्वालिटी और कैपेबिलिटी है सिस्टम की वो आगे से आगे जाए और बेहतर से बेहतर। बहुत बड़े लोग नहीं देते होंगे, लेकिन ये कि अगर आप देखें तो मैंने ऐसी भी देखी हैं कि एक बेचारा रेड के आता था अस्पताल की डोनेशन देने के लिए, उसको मना किया भाई कि गर्मी में तुम आते हो, उसने कहा जी मेरा हक बनता है। समाजी शख्सियत मलक महबूब हुसैन और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हॉस्पिटल के फलाही कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। शौकत खानम इमरान खान का ओरिजिनल विजन था, ड्रीम था, बट जो शौकत खानम की टीम है वो उसको डे टू डे सक्सेस बनाती है। और आज उस टीम की एफर्ट्स देखना और क्या उनके आगे विजन है, बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम तो डोनर हैं, हम देख के अपने काम में बिजी होते हैं, पर ये लोग एक्चुअली इसको सक्सेस बना रहे हैं और कितने लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमें बहुत खुशी हुई है। वो बहुत अच्छी कॉज है। और मैं पाकिस्तान गया हूँ, जब डॉक्टर फैसल साहब ने मुझे टूर कराया है हॉस्पिटल का, वहाँ जो देखा है जी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बड़े इम्प्रेस हुए कि इतना अच्छा काम हो रहा है और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है। हमने आके लोगों को भी बताया। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीब में शिरकत की और इमरान खान की क़यादत में कैंसर हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया। बरतानिया में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की चैरिटी को 25 साल मुकम्मल होने पर 2 रोज़ा तकरीब का एहतमाम लंदन के मुकामी होटल में किया गया, जहाँ बरतानिया भर से डोनर्स को मदऊ किया गया और उनकी गिरां कदर खिदमात को सराहा गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन के मकामी हॉल में मजहबी रहनुमा हाफिज मोहम्मद इस्माइल के किताब सूरह यासीन के फ़ज़ाइल की रनुमाई की गई, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। लाख दुनिया में हंसी होंगे मगर आप जैसा बाखुदा कोई नहीं। ए सैयदुल मुरसलीन, आगे आता है कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप बिलाशुबा उन लोगों में से हैं कि जिनको मैंने भेजा इन बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए। तो ये मुराद है, फिर उसके बाद वो सारा सिलसिला चलता है। ना तो आसार है साहिल के, न किश्ती मजबूत, और आने को तूफान है बड़ी मुश्किल है। यानी हमारे हालात ऐसे थे कुछ। वाल्थम फॉरेस्ट पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम के ज़ेरे एहतमाम मजहबी रहनुमा हाफिज मोहम्मद इस्माइल की किताब की रोनुमाई ईस्ट लंदन में की गई। इस मौका पर मुसन्निफ ने कहा, यह किताब न सिर्फ उर्दू समझने और बोलने वालों के लिए मुफीद है, बल्कि इसमें अंग्रेजी तर्जुमा भी शामिल है, जिससे नौजवान नस्ल मुस्तफीद हो सकती है। शायर व अदीब अमजद मिर्जा ने कहा, वाल्थम फॉरेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम गुज़श्ता 14 साल से अदब की खिदमत कर रहा है। इस फोरम पर मकामी और बाहर के मुसन्निफीन और शोरा की हौसला अफजाई की जाती है, जबकि शुरका ने तकरीब के इनेकाद को खूब सराहा। आज मेरे लिए बहुत मुसरत की बात है, फ़ज़ाइल सूरह यासीन किताब की रुनुमाई हो रही है। सैकड़ों शुरका और अदीब हजरात मौजूद हैं। ये सूरह यासीन मुबारक जो है, इसकी फ़जीलत और क्या हो सकती है कि एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक के बराबर अजर मिलता है। और फिर ये सिर्फ़ सूरत यासीन फ़ज़ाइल ही नहीं, बल्कि इसमें क़यामत का ज़िक्र है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का खुलासा बयान किया गया है, और इसमें दावत का जो पहलू है, लोगों की इस्लाह करना, वो भी वाक़या जो है वो ज़िक्र किया गया है। तो हर एतबार से ये इनकलाबी सूरत है। आज की ये किताब की रूनुमाई जो है, मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो किताब लिखी है फ़ज़ाइल सूरह यासीन, बड़े अंग्रेज़ी से इन्होंने काम लिया है। ये आम किताबों से हट कर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जब हज़रत मोहम्मद के बारे में कोई नात लिखती हूँ, कोई हमद लिखती हूँ, तो फेसबुक पे शेयर करती हूँ, तो मुझे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है कि आपने तू क्यों लगाया, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसे लोगों की मौजूदगी में एक पूरी किताब मुरतब कर दी, वो भी यासीन पे। आज की जो तकरीब है वो अलामा साहब की जो किताब है यासीन पर उन्होंने लिखी है, उसकी तकरीब रूनुमाई थी। और इस किताब में ये है कि उन्होंने एक तो ये है कि यासीन सूरह यासीन पर तफसीलन
लिखा है। फिर उसका ये एक तर्जमा भी है, रोमन उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, ताकि जो हमारी नई नस्ल है उनके लिए ज़रा आसानी हो। ये उन खूबसूरत किताबों में से एक खूबसूरत किताब है जिसकी न सिर्फ हमें मरते वक्त ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदगी में हमें ये दुनिया की और आखिरत का तोशाए हयात है। ये एक ऐसा तोहफ़ा, ये ऐसी सौगात है मुतबर्रक, मुतहर, अतर और मुनज़्ज़ा कि ये ज़िंदगी के फ़ज़ाइल में इजाफ़ा करती है, अमाल को बढ़ाती है। हमारा ये जो तंजीम है वाल्द फ़ारस पाकिस्तानी कम्युनिटी फ़ोरम, ये साबका 14 बरसों से हर महीने की पहली इतवार को सेंट्रल लाइब्रेरी में ये मुशायरे का इनेकाद करती है, जिसमें हम मकामी और गैर मकामी लोगों की किताबों की रस्म इजरा भी करते हैं और मुशायरा भी करते हैं, और ये अदब की खिदमत हो रही है। तकरीब में मकामी शोरा ने अपना कलाम भी पेश किया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल किए। जान मानता ही ना था जो मुझसे कभी, आज वो मुझको मनाने लग गया। जो चलाया था बड़ी सरकार पर, तीर वो मेरा ठिकाने लग गया। जिससे पूछा मैंने मंजिल का पता, वो मुझे रास्ता बताने लग गया। मैं बहुत रोई थी जिसकी याद में, वो मुझे आके हंसाने लग गया। तकरीब में प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बका, डॉक्टर शौकत नवाज, डॉक्टर नसीर अहमद और मिर्जा अमजद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम के साउथ एंड सिटी कॉलेज वुमेन कैंपस के ज़ेर एहतमाम ख़ातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका को ख़ातीन की मुआशरे की बेहतरी के लिए की जाने वाले खदमात से आगाह किया गया। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से बर्मिंघम के साउथ सिटी कॉलेज में तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को मदऊ किया गया था। तकरीब की मुंतज़मीन अकीला शरीफ, समाजी वर्कर आयशा इकबाल, खातून क्रिकेटर आसमा एजाज और दीगर का कहना था कि ख़वातीन माशरे की तश्कील और मुल्की मईशत की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। Celebrating International Women's Day, a really important day to recognise women's strengths, their achievements. Celebrating all achievements of all women, and that's exactly what we've been doing at the college today, celebrating all achievements, big or small, and just celebrating one another. Cricket board trying to promote more South Asian Desi women into the sport through coaching, through playing cricket, and to be equal with all the men as well. मीडिया से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि तकरीब का मकसद खवातीन की हौसला अफजाई और इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना था, ताकि वो घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी आला मुकाम हासिल कर सकें। कॉलेज में एक स्पेशल इवेंट किया था जो वुमेन्स इंटरनेशनल डे के बारे में था। यहाँ पे बहुत डाइवर्स कम्युनिटी थी, हर कम्युनिटी से आज स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए। हमने उनके लिए गेस्ट स्पीकर्स लेके आए जो मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, जो सही एम्पावरमेंट करें, जो उनको गाइड करें, जो एडवाइस कर सकें कि पढ़ाई के बाद वो क्या कर सकते हैं। वुमेन्स इंटरनेशनल डे तो मेरे ख्याल में हर रोज़ होना चाहिए। We've put on a variety of workshops, they've heard from a variety of guest speakers, and it's been a really good opportunity for them to take part in activities that they wouldn't normally do and open their eyes really as to what they can do in their lives, and it's really been about empowering our female students at our female only campus to realise that actually the world is their oyster and they can do. इस मौके पर खवातीन की पेशा वराना सलाहियतों को उजागर करने और इनमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स मुनक्कद की गई थीं और मालूमाती स्टॉल्स भी लगाए गए थे। माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाने में खवातीन का बड़ा अहम किरदार है। इसी सिलसिले में साउथ सिटी कॉलेज ने वुमेंस डे के मौके पर उन खवातीन को जमा करके उनके किरदार को उजागर किया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन सकें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरी के मकामी हॉल में पोठहारी शेरों की एक खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें खित्ता पोठहार और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बरी के मकामी हाल में कारोबारी शख्सियत राजा फयाज खान की तरफ से पोठोहारी शेरों की खूबसूरत महफिल सजाई गई। महफिल में पाकिस्तान से आए शेर खान, राजा आसिफ कियानी और बरतानिया में मुकीम राजा सादत कियानी ने खूब रंग जमाया। मीडिया से बात करते हुए शुरका का कहना था, इस तरह की महफिल का मकसद बरतानिया में परवान चढ़ने वाली नई नस्ल को अपने मुल्क की सकाफत और कल्चर से रोशनास करवाना है। पटवारी महफिल कराने का सारा मकसद है कि इतने जो नौजवान नस्ल है उनकी अपनी सकाफत ना पता चला है कि साड़ी माँ बोली है, इसकी प्रमोट करना चाहिए। ये ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਣੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਖੁਸੂਸ यूरोप इंग्लैंड ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ दिल तो शुक्रिया अदा करने। काफ़ी दूसरे शहरों तो और लोकल बंदे भी तशरीफ़ फरमान। पटवार तो एक बहुत बड़ा ना आसिफ कियानी साहब इस दौरे पर आए तो असा संगी साथियों ने शुक्रिया अदा करने कि अपनी साड़ी सकाफत की जिंदा रखने वास्ते अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। जी महफल है भाई राजा फयाज साहब ऑर्गेनाइज किया, बरी ने सकाफती कल्चर किया, पटवार जोड़े शायर खान आए साड़ी माँ बोली जबान की उजागर करने वास्ते अस सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करने जोड़े इस महफिल तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह आगे भी बहुत प्रोग्राम होने रहता है, आगे भी होने रह सन और यंग तबका भी तारक रबानी जे बंदे आ रहे इस फील्ड इंशाअल्लाह इसकी जिंदा रख सन। ये महफिल बरी ने मुकाम पर हुई। मेरे ब्रदर जनाब राजा फयाज साहब ते राजा शहजाद साहब, राजा हसन अख्तर साहब, दिगर बरी नी जी भी कमेंटी है ना सारे हम नकद की सी। बहुत प्यारी महफिल हुई। अल्लाह पाक इन्हों की होर इज्जत तो नवाजन जी। ये साड़ा कल्चर है जिथे महफिल करने का मकसद ये है कि साड़ी जी नवी जनरेशन है साढ़े इस कल्चर तो आगाह होवे, जड़े वो कोई गलत कामों च इन्वॉल्व ने अस इंतहाई कोशिश करने कि असाने बच्चे भी इस साइड से आन। पाकिस्तान से आए शेर खान राजा आसिफ कियानी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बरतानिया का उनका पहला दौरा है और बरतानिया में बसने वालों का अपनी सकाफत से लगाव देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। सब तो पहले तो मैं 92 न्यूज़ वाले ने शुक्रिया अदा करना कि जड़े रिपोर्टिंग ने नाल अपने इन्होंने सकाफती प्रोग्रामां ने बड़ी पजीराई वास्ते काम करने पे। मेरा इतना यूके ना फर्स्ट टूर है तो मैं भी बड़ी खुशी हुई एक चीज़ तकी है कि इतना हर बंदा बड़ा मसरूफ़ है, बड़ा बिजी है, लेकिन अपने कल्चर वास्ते हर बंदा बड़ा वो जोशो खरोश नाल काम करना पिया, क्योंकि जिथे साड़ियाँ महफिल होनियां तकरीबन उत्थे हाल फुल होने। तो ये इन्हों लोगों ने मैं तो समझना कि अपने कल्चर नाल जिहड़ी मुहब्बत है उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। तो वैसे भी जड़े अच्छे लोग होने वो अपने कल्चर की जिंदा रखने और साढ़े माशाल्लाह खिते ने जी आवाम है, मैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा करना जिन्हें दियारे गैर विच मुल्क तो बाहर अपने कल्चर वास्ते दिन रात काम करने पे और बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। ओल्डहम से काउंसलर चौधरी आफ्ताब हुसैन और कारोबारी शख्सियत राजा खालिद परवेज ने महफिल में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। राजा वाजिद 92 न्यूज़ बरी। प्रदेश में अपने देश की सकाफत और कल्चर के रंगों को रानाई बख्शने वाले ये लोग बिलाशुबा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद 92 न्यूज़ बरी। और बुलेटिन में यहाँ शामिल है एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से 72 घंटों की मोहलत के हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान का कहना है कि ऐसे अफराद जो छुट्टियां गुजारने अपने ममालिक गए हैं वो अपनी छुट्टी में इजाफा कर सकते हैं। सऊदी अरब के मकामी चैनल के मुताबिक बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने के लिए जाने वाले सऊदी शहरी मजीद छुट्टियां ले सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के तर्जमान नासिर बिन मसलत ने ऐसे तमाम अकामा होल्डर्स को खुशखबरी दी है कि जो छुट्टियां गुजारने अपने ममालिक में मौजूद हैं वो महकमा पासपोर्ट के कंप्यूटराइज्ड निज़ाम अबशर के जरिए अपनी छुट्टी की मियाद को बढ़ा सकते हैं। इस हवाले से वर्कर्स को अपनी मकामी कंपनी या कफील से राब्ता करना होगा। नोटिंगम में मलिक नज़ीर और पाकिस्तान के मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर मोहसिन सम्राट की याद में पहला ऑल यूके और यूरोप सुपर 8 शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में।
नोटिंगम में पहला ऑल यूके और यूरोप सुपर 8 शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में कांटेदार मुकाबला देखने को मिला और फातेह टीम ने 22 के मुकाबले में 25 पॉइंट लेकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ियों और मेहमानों ने कहा, इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए क्योंकि ये सरगर्मियां नई नस्ल को बुरे कामों से बचाने में मददगार साबित होती हैं। आज असां नोटिंगम के मुकाम पर वॉलीबॉल ओपन शूटिंग टूर्नामेंट असी रखा सी ऑल यूके और यूरोप ना जी, जितने भी साढ़े प्लेयर और मेहमान खसूसी और शौकीन वॉलीबॉल आए से उन्होंने सारे बड़ी मेहरबानी शुक्रिया नवाज़श जी। और असां इस तरह ट्राई करने अगला टूर्नामेंट भी इस तरह ऑर्गेनाइज करिए तो नौजवान जितनी नस्ल है असां उन्होंने यही कोशिश करने हैं कि बुरिया कामों से बचन और इतने अचन। असां टूर्नामेंट असां करने का मकसद यही होना कि उन्हें बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है और अचन और खेलन। और असां जो वॉलीबॉल है वो इंशाल्लाह असां इसकी पूरे तरीके प्रमोट करता और इसकी इच्छा कि असां इसकी बहुत इंटरनेशनल सतह पर करी जाएं जी। फातेह टीम को 1000 पाउंड इनामी रकम दी गई, जबकि दूसरी पोजीशन पर आने वाली टीम को भी इनामात से नवाजा गया। मेहमान खसूसी चौधरी ज़हीर अहमद और दीगर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में भी इनामात तकसीम किए। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। इराक के शहर बसरा में जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पर इराकी नौजवानों के जूतों समेत चढ़ने और तौहीन आमेज़ जुमले कसने पर पाकिस्तानी मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इराकी हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल और रसूलुल्लाह की खाला के बेटे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा उम्मे सलीम ने आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाम के लिए लाजवाल खिदमत हैं। आपका विसाल इराक के शहर बसरा में हुआ और वहीं आपका रोज़ा पाक है। आपके रोज़ा मुबारक पर नौजवान इराकी लड़कों का जूतों समेत चढ़ना और तौहीन आमेज़ जुमले कसना शदीद बेअदबी और शायर इस्लाम की तौहीन है। पाकिस्तानी मुसलमान इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि इराकी हुकूमत से राबिता करके मजम्मत की जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।